तो स्टूडेंट्स, चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यू चल रहा है। इससे पहले इसके 3 लेक्चर्स आपको दिए जा चुके हैं। थर्ड लेक्चर में लास्ट जो हमारा था उसमें हमने लास्ट जो टॉपिक रीड किया था वो था कूलम्ब्स लॉ। यू नो, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ the force between 2 point charges is directly proportional to product of magnitude of the charges and inversely proportional to square of the distance between them. That is F equal to K Q1 Q2 upon R square we have discussed already, where K is called electrostatic constant, K equal to 1 upon 4 pi epsilon naught, and which is 9 into 10 to the power 9 Newton into meter square upon Coulomb square. And already we have discussed about epsilon naught, that is the permittivity of medium of free space. After it, we use force between 2 point charges in the presence of any dielectric medium, and that is F medium equal to 1 upon 4 pi epsilon naught epsilon r Q1 Q2 upon R square or F upon epsilon r, where epsilon r is relative permittivity or dielectric constant of dielectric medium or simple of medium. Value of epsilon r is 1.000 for vacuum or free space, and it is minimum value. Epsilon r equal to infinity for all metals, and it is maximum value. Or epsilon r equal to 80 for water. Epsilon r equal to 1.00059, approximate 1.000 for air, and 5 to 10 for glass. All these things we have discussed in lecture 3. Now we take some numerical problems. First numerical problem: electrical force between 2 point charges is F. Question there: electric force between 2 point charge is F if the distance between charges do half of its initial distance. Before calculation, the charge at r distance and the force between them is F. If we do the distance between charges r by 2, then what will be force? That is the question. What is force? Here we taking F proportional to 1 upon R square, implies that F1 upon F2 equal to R2 upon R1 whole square. F1, F2 we want to calculate, R2 R by 2 and
R1 is R whole square, R से R कैंसिल, F अपॉन F2 is equal to 1/4 and F2 is equal to 4F. Means if we taking constant charge but distance just half with respect to initial distance, then the force will be 4 times of initial force. ये एक आपके पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन है. कोई भी डिस्टेंस से रिलेटेड इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है, हाफ कर दे, 1/3 कर दे, 3 टाइम्स कर दे, 2 टाइम्स कर दे, तो आपको ये इस तरीके से F प्रोपोर्शनल टू 1/r² से कैलकुलेट करना है. सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इन एयर इज 50 न्यूटन और इन फ्री स्पेस. फ्री स्पेस या एयर में फोर्स जो दिया है 2 पॉइंट चार्ज के बीच में, वो दिया बेटा 50 न्यूटन. इफ अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज टेकिंग बिटवीन चार्जेज ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 का एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम इन्होंने चार्ज के बीच में ले लिया, तो व्हाट विल बी फोर्स बिटवीन चार्जेज. तो यू नो एफ मीडियम इक्वल टू एफ अपॉन एप्सिलॉन आर एंड दैट इज इजीली सॉल्यूशन 50/5 that is 10 Newton. Already we have discussed about it. तो F मीडियम और F फ्री स्पेस के रेस्पेक्ट में जब मीडियम में फोर्स आता है या मीडियम की प्रेजेंस में जो फोर्स आता है, वो वैल्यू डिक्रीज हो जाती है. ये आपके पास फॉर्मूले से है. थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है एक, 2 पॉजिटिव आयंस ऑफ सेम चार्ज रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स. एक फोर्स दिया है, 2 पॉजिटिव आयन दिए हैं सेम चार्ज के, ये सेम चार्ज प्लस क्यू और प्लस क्यू, और फोर्स दिया रिपल्सन फोर्स बेटा 3.7 इंटू 10⁻⁹ कूलॉम, 9 न्यूटन सॉरी, फोर्स बिटवीन देम, और डिस्टेंस बिटवीन देम इज 5 एंगस्ट्रॉम. डिस्टेंस दिए बेटा 5 एंगस्ट्रॉम. ये टोटल न्यूमेरिकल्स आपको नोट्स में भी दिए जाएंगे. तो ये 5 एंगस्ट्रॉम इसमें डिस्टेंस है. 2 पॉइंट चार्ज है, प्लस क्यू पॉजिटिव आयंस है, और उनके बीच में रिपल्सन फोर्स लग रहा है 3.7 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन. तो आपसे पूछा है व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज. सॉल्यूशन F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R² implies that F is equal to K Q upon R² implies that F is equal to KQ² upon R² and implies that Q is equal to under root F R² upon K, and F is equal to Q equal to R, sorry, implies that Q equal to R under root F upon K. That's the formula for Q. Now we calculate value of Q. R is 5 into 10⁻⁻10. 5 एंगस्ट्रम गिवन है बेटा. एंगस्ट्रम 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू होता है 10⁻10 मीटर. तो मैंने यूज किया 5 इंटू 10⁻10 अंडर रूट एफ गिवन था 3.7 इंटू 10⁻⁹ एंड 9 इंटू 10⁻9, ये आपके पास K था. तो Q इक्वल टू 5 इंटू 10⁻10 अंडर रूट 3.7/9
इंटू 10⁻18। 9 का जो आपके पास अंडर रूट बाहर आएगा वो 3 आ जाएगा, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं बेटे 5/3 इंटू 10⁻10 तो ये, और -18 का जब अंडर रूट से आउट करेंगे तो 10⁻9, तो टोटल हो जाएगा -19, और अंडर रूट में 3.7। 3.7 का जो रूट आता है ये आ जाएगा आपके पास 1.32, 1.92, तो 1.92 जब यहाँ पर यूज करेंगे 5/3 इंटू 10⁻19 इंटू 1.92 होल करने पर यह आ जाता है बेटा 3.2 इंटू 10⁻19 कूलाम। ये चार्ज आपके पास इन आयंस पर आता है। अब अगर आपसे ये क्वेश्चन यूँ और पूछता है, थोड़ा क्वेश्चन इंक्रीज कर देता है और आपसे पूछता है कि व्हाट आर या फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज बाय ईच आयन। एक आयन ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यदि निकालने हैं तो Q आपके पास आ गया, Q इक्वल टू ये है, और जब ये चार्ज आपके पास आ गया तो आप जानते हो N इक्वल टू Q/E होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यदि आपको निकालने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज बाय ईच एटम, तो N इक्वल टू Q/E 3.2 इंटू 10⁻19 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻19 ऑन कैलकुलेट यू गेट N इक्वल टू 2। मीन्स आपका आंसर आ गया ईच आयन या ईच एटम लूज 2 इलेक्ट्रॉन देयर, ईच एटम लूज 2 इलेक्ट्रॉन देयर फॉर making an ion, and these ions are at 5 angstrom, then force between them, repulsion force between them is 3.7 into 10⁻9। ओके, फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास आता है एक, कंपेयर इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटी फोर्स बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये क्वेश्चन हमारे पास आता है, कंपेयर इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटी फोर्स बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन्स। मैं इलेक्ट्रॉन्स एक एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूं, 2 प्रोटॉन्स भी आ सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन भी आ सकता है। आपको स्टेप समझनी है किस तरीके से कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन, इलेक्ट्रिक फोर्स Fe इक्वल टू K Q ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन R स्क्वायर, मीन्स K Q इलेक्ट्रॉन स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, that is the electric force between 2 electrons. Gravity force between 2 electrons, Fg is equal to G m of electron upon R square, means G me square upon R square. That is the gravity force between 2 electrons. If you get force between electron and proton, then यहाँ mass change होता me mp, okay, यहाँ qe qp, although charge of electron and charge of proton are equal, so there is no effect of qe qp or qe square, but mass of proton and mass of electron are different. You know, mass of electron is 9.1 into 10⁻31 kg, while mass of proton is 1.67 into 10⁻27 kg. So you mention there. Here we calculate electric force and gravity force between 2 electrons. Now
एफ ई अपॉन एफ जी इक्वल टू के क्यू ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर अपॉन जी एम ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कैंसिल टू आर स्क्वायर एंड देयर के क्यू ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई स्क्वायर implies that एफ ई अपॉन एफ जी इक्वल टू 9 into 10 to power 9 into 1.6 into 10 to power minus 19, 1.6 into 10 to power minus 19 upon 6.67 into 10 to power minus 11, value of gravity constant capital G, 9.1 into 10 to power minus 31, 9.1 into 10 to power minus 31. If we consider 9.1 approximate equal to 9, approximate calculation यहाँ पर यदि हम करें तो approximate calculation के लिए बेटा मैं 9 को 9.1 से क्या कर देता हूँ, कैंसिल आउट कर देता हूँ। तो यहाँ 16 जा 256 तो 2.56 इंटू 10 टू पावर माइनस 38 हम अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन यहाँ कर रहे हैं। ये एक हमारे पास कैंसिल हो गया, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 7 जा 63, 6 54 और 6 66, फिर 60 तो ये हो जाता है हमारे पास 60.03 और 10 टू पावर माइनस 73 हो जाती है। 31 62 61 में 11 ऐड करोगे 73। ऑन कैलकुलेटिंग आपके पास ये 2.56 या 256 अपॉन 6003 इंटू 10 टू पावर माइनस 73, डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में जाएगा प्लस 73 में से 38 को माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 45 10 टू पावर 45। ओके 73 माइनस 38 तो 5 और ये 35 आएगा बेटा 19। अच्छा 9 ये और है हमारे पास, ये प्लस 9 यहाँ हमारी रह गई तो ये 44 हो जाएगा बेटा। कैलकुलेट करने पर ये प्लस 9 में यहाँ पर इसको थोड़ा सा फॉरगेट कर गया था, भूल गया था, तो ये प्लस 9 यहाँ लिख दिया मैंने 44। मीन्स आप यहाँ पर ये यूज कर सकते हो बेटा 2560 अपॉन 6003 इंटू 10 टू पावर 43 और इसमें जब आप डिवीजन देंगे तो अप्रोक्सीमेट 4 टाइम्स जाएगा पॉइंट में, तो 0.4 इंटू 10 टू पावर 43। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटी फोर्स का रेशियो आता है किसके बीच में, 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। और यहां से ये क्लियर हो रहा बेटा कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज मोर या वेरी स्ट्रॉन्ग विद रेस्पेक्ट टू ग्रेविटी फोर्स। और कितना स्ट्रॉन्ग होता है, अप्रोक्सीमेट 10 टू पावर 43। किसके बीच में, 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। अगर बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आता तो यहाँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन करते, यहाँ MEMP दोनों के मास अलग अलग लिखते, तो यहाँ पर 10 टू पावर माइनस 27 आने के कारण वैल्यू चेंज हो जाती। अगर दोनों प्रोटॉन आते तो यहाँ MP यानी इसके कारण यहाँ पर चेंज हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रिक फोर्स है जो मोर इफेक्टिव होता है वो किसके बीच में होता है, विद रेस्पेक्ट टू ग्रेविटी फोर्स। अगर देखें तो विद रेस्पेक्ट टू ग्रेविटी फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स इज मोर इफेक्टिव बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये एक कैलकुलेशन करने का तरीका है 2 पार्टिकल्स के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स की कंपेयर करने का। आप कर सकते हैं, कोई सा भी क्वेश्चन आपके पास आए आप देखिएगा। अब हम इसमें टॉपिक लेते हैं वेक्टर फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
vector form of electrostatic force. Electric force between 2-point charge always directed along to the distance between charges or along to the line joining between charges. If these are positive charge, then the force will be outsider along to the line joining. If these are negative charge, then also force will be outsider. And if one positive and one negative charge, then the force will be inside or directed to each other charges. Because this is attraction force and these both are repulsion force. Repulsion force जब भी किसी दो चार्ज के बीच में वर्क करता है तो एक चार्ज दूसरे चार्ज को, वन चार्ज अनदर चार्ज को रिपेल करता है, यानी अवे करता है, अपने से दूर भगाता है. और अट्रैक्शन फोर्स यदि अप्लाई होता है तो वन चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर मीन्स टेकिंग नियर टू हिम, उसकी तरफ लेकर आता है. इसलिए ये मैंने डायरेक्शन की बात नहीं बताई. और जो भी फोर्स वर्क करेगा वो अलोंग टू द लाइन ज्वाइनिंग वर्क करेगा. वापस पूरी लैंग्वेज सुन लीजिए. द फोर्स बिटवीन 2-point चार्जेस एक्टेड ऑलवेज अलोंग टू द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्जेस. द फोर्स बिटवीन 2-point चार्जेस एक्ट always along to the line joining of 2-point charges. So in vector formation, vector F equal to K Q1 Q2 upon R square R cap, where R cap is unit vector in the direction of line joining. आर कैप लाइन ज्वाइनिंग की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है. तो ये वेक्टर एफ इजिकल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आर कैप. सपोज करो देर आर टू चार्जेज इन अ सिस्टम X, Y and Z, Q1 charge and Q2 charge. The position vector of Q1 is vector R1 and the position vector of Q2 is vector R2. The force due to charge Q1 at Q2 will be F21 directed towards this, and the force due to charge Q1 due to charge Q2 on charge Q1 is R12. Both charges are positive charge, so we taking direction outside. If these are opposite nature charge, one positive and one negative, then we take this direction towards inside. Okay, already I have discussed. Clear? Here some treatment also there. थोड़ा सा यहाँ पर हम बात करते हैं. आर कैप जो होता है यूनिट वेक्टर, वो होता है वेक्टर आर अपॉन आर. यू नो आर कैप इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर. सो देयर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर और वेक्टर आर अपॉन आर. And also we can write there
के Q1 Q2 अपॉन R क्यूब वेक्टर R। अगेन रिपीट, F इक्वल, ये जो फोर्स है, फोर्स दोनों चार्ज को जो मीट करने वाली लाइन है या ज्वाइन करने वाली लाइन है उसके अलोंग वर्क करता है, और लाइन के अलोंग जो हमने यूनिट वेक्टर लिया वो क्या लिया, आर कैप इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग। जैसा कि आप यहाँ पर देख भी रहे हैं, ये इस तरीके से लाइन ज्वाइनिंग की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लेंगे आर कैप। आर कैप जो होता है, तो ऑलरेडी हमारे पास था फोर्स का फॉर्मूला क्या था, ऑलरेडी एफ इजिकल टू था के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। उसको हमने वेक्टर फॉर्मेशन में पुट ऑन किया, तो वेक्टर एफ इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आर कैप होता है वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर आर, वेक्टर आर अपॉन आर या आर क्यूब, के Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब आर वेक्टर। तो अब यहाँ पर फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स एट पॉइंट चार्ज Q2, पॉइंट चार्ज Q2 ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q1 F21 इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन मोड ऑफ R21 वेक्टर होल क्यूब एंड R21 वेक्टर। यह आपके पास R21 वेक्टर इस डायरेक्शन में लिया हमने, R21 ओके, R21 वेक्टर एंड फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q2 ऑन पॉइंट चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 ऑन Q1 F12 वेक्टर इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन मोड ऑफ R12 वेक्टर क्यूब और R12 वेक्टर, दैट इज 1 2 नंबर और भी डाल सकते हैं यहाँ से भी। तो ये आपके पास ये तो है F21 मीन्स Q2 पर Q1 का फोर्स, के Q1 Q2 अपॉन R21 क्यूब और R21 वेक्टर, और Q1 पर Q2 का जो फोर्स हुआ, यानी Q1 पर, इस Q1 पर Q2 का जो फोर्स हुआ वो ये हो गया के Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर। आप जानते हैं बेटा, सिंस मोड ऑफ R12 always mod of R21 and vector of R12 is equal to minus of vector of R21। मॉडुलस जो होता है R12 का और R21 का वो इक्वल होता है, सिमिलर होता है। आप जानते हैं, जैसे सपोज करो मैं आपको आपके रूम की लेंथ मेजरमेंट करने के लिए कहूँ, तो आपके पास दो कम से कम चांस है, एक तो आप इस कॉर्नर पर खड़े होकर उस कॉर्नर की लेंथ मेजर करें, या उस कॉर्नर पर खड़े होकर इस कॉर्नर की लेंथ मेजर करें, तो दोनों सेम आएगी। बट जब आप इस कॉर्नर पर खड़े हैं तो आपकी डायरेक्शन इधर है, और जब उस कॉर्नर पर खड़े हैं तो आपकी डायरेक्शन अपोजिट हो गई। तो ये मॉडुलस सेम आता है बट वेक्टर में नेगेटिव साइन आता है। अगर ये वैल्यू अपन रखते हैं तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाता है बेटा, यहाँ देन F12 वेक्टर इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R21 क्यूब, मॉडुलस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, बट यहां पर जब लिखेंगे तो माइनस वेक्टर R21 आएगा। ये इक्वेशन नंबर 3। और यदि फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करते हैं, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट
एंड थर्ड तो आपके पास आ जाता है मॉड ये वेक्टर F12 इज इक्वल टू माइनस वेक्टर F21, वेक्टर F12 इक्वल टू माइनस वेक्टर F21। इसको मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, वेक्टर F12 इक्वल टू माइनस वेक्टर F21 मीन्स जो फोर्स है वो एक्शन रिएक्शन प्रिंसिपल का ओबे करता है, या यूँ कह दीजिए कूलम्ब्स लॉ ओबे ऑल्सो एक्शन रिएक्शन प्रिंसिपल। ये सारी कैलकुलेशन आपके सामने इससे है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। पहले सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। थैंक्स बेटा।